पढ़नी पड़ेगी. So let's start the story. Story's name again I'm reminding you, this is Uncle Porger hangs a picture. Okay, यानी कि it is about a story of a person that whose name is Uncle Porger. Actually not name, that is the designation that everyone calls him Uncle Porger, and he is trying to hang a picture. एक दीवार पे वो पिक्चर लगाने की कोशिश कर रहे हैं. So anyone who would like to start reading? Yes, anyone who would like to read the story? Please don't sit here like table chairs. ठीक है, यहाँ पर क्लास में आप लोग टेबल चेयर की तरह ना बैठा करें. स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की तरह बिहेव करें. So if there is no one who is trying to respond, I will call out the name and you will respond. Understood? Am I loud enough? Am I clear enough? Is my voice clear? Are you able to hear or not? Okay, I have not muted your view from my side. So if anyone can respond. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. So if I'm audible, then respond to that. If anyone wants to read, they can raise their hand. Otherwise, I will call you by name so that you can start reading here. Yes, anyone who would like to read? Shall if you are not speaking yourself, then let me do this. Yes, 4 to 5 students. आप लोग कुछ ज्यादा ही शांत बैठते हैं. तो yes, Ashish or Durgesh, anyone of you who would like to start? Okay, if I don't get any response from any student जिसका specifically मैं नाम ले रही हूँ, क्लास में बैठने का कोई फायदा नहीं है. I will be start removing you from the class. Yes, ma'am. Yes, start reading from the जितना स्क्रीन पे दिखता है उतना रीड करिए. उसके बाद फिर I will share the scroll down. Okay, ma'am. You never saw such a commotion up and down a house in all your life as when Uncle Podger undertook do a job. A picture would have come from the frame makers and be standing in the dining room, waiting to be put up. And Aunt Podger would ask what was to be do with it, and Uncle Podger would say, "Oh yeah, leave that me, don't you? Any of you worry yourself about, then I will do all that." And then he would take off his coat and begins. He would send the girls out for sixpence worth of nails, and then one of the boy after her tell her what size of it, and from that he would gradually work down and start the whole house. Now you go and get me my hammer will be wood suit and you bring me the rules. Tom, I'll say I want to be step ladder and I had better have a kitchen chair too and Jim. You run around me, Mr. Googles, and tell him Pa- Pa's kids regards and hopes his legs better and will be lends me to his spirit's level. And don't you go, Maria, because I shall want somebody to hold me the light. And when the girls come back, she must go out again for a bit of picture quotes. And Tom, where's Tom? Tom, you come here. I'll shall want to be hand up me in the picture. Mm, And then he would lift up in the picture and drop it, and it would come out of the frame. And he would try to save the glass and cut himself. And then he would spring around the room, looking for his hand handkerchief because it was in the pocket of the coat, and he take off. मैम ऊपर कीजिएगा. Yes, thank you, ma'am. And he did not know where he has put the coat, and all the house had leave off looking for his tools and start looking for his coat while he would dance round and hide them. Doesn't anybody Okay, in the whole Durgesh, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे समझाने दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे. So what is the story around? I have already told you. This is around the person, ठीक है, Uncle Porger.
This story was actually written for you can say humorous purpose. सिर्फ हंसाने के लिए एक बहुत ही फनी स्टोरी है, ठीक है। क्या स्टोरी है हम जरा यहाँ पर देखते हैं कि आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि अंकल फॉजर जब भी कोई काम लेते हैं, ठीक है, तब पूरे घर में जो है हलचल मच जाती है। कमोशन मीन्स कि हलचल हो जाना। तो जब भी अंकल फॉजर कोई भी काम लेते हैं, ठीक है, तो पूरे घर में सब कोई को हलचल लगने लगती है, बहुत ज्यादा भागदौड़ होने लगती है। क्यों ऐसा होता है वो हम देखते हैं। एक पिक्चर थी जो कि फ्रेम मेकर के पास से आई थी, ठीक है, और डाइनिंग रूम में रखी हुई थी। अब आंट फॉजर जो है वो आंट फॉजर जो है वो लगाना चाह रही है उसे दीवार पर, ठीक है। तो अंकल फॉजर जो है वो कहते हैं कि तुम ये सब मुझसे छोड़ दो, तुम परेशान मत हो, मैं कर लूंगा। एंड वंस ही स्टार्ट डूइंग द जॉब, जैसे ही वो स्टार्ट करते हैं तो वो अपना कोट निकालते हैं, ठीक है, और जो लड़की है वहां पर उनकी जो बच्ची है उन्हें नेल्स यानी कि कील लाने के लिए भेज देते हैं। और जितने लड़के हैं उन्हें एक एक करके कुछ ना कुछ काम करने के लिए भेज देते हैं, ठीक है। विल जो है, विल को वो हैमर लाने बोलते हैं, ठीक है। विल को यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है कि हैमर लाने के लिए बोला हुआ है उन्होंने। और टॉम जो है उसको कहा है कि वो रूलर यानी कि रूल जो आपका टेप होता है या मेजरिंग के लिए जो डिवाइस यूज हो रहा है, जो भी उस टाइम पे यूज होता है, तो उसे मेजरिंग डिवाइस लाने के लिए कहा है। और लैडर किसे लाने के लिए कहा है? लैडर और एक किचन चेयर, ठीक है, लैडर और एक किचन चेयर जिम को लाने के लिए कहा है, सॉरी टॉम को लाने का है। और जिम को क्या कहा है कि वो मिस्टर गूगल के पास जाए और पूछे कि आपका जो पैर है, ठीक है, उनका पैर शायद चोट लगा हुआ था, तो वो ठीक है या नहीं उनके बारे में पूछे। और उनसे स्पिरिट लेवल, व्हाट डू यू मीन बाय स्पिरिट लेवल? कैन एनीवन टेल मी स्पिरिट लेवल क्या होता है? ओके, तो यहाँ पर स्पिरिट लेवल का क्या मतलब है? दैट मीन्स यहाँ पर spirit level is I believe something that is a device that is used for measuring. Okay, it is an equipment, okay, which is used by these construction workers for a survey. So he might be doing that. The Uncle Podger might be doing that to survey what is the level of how much height does he want to how much height does he want to the picture to be there, ठीक है। वो पिक्चर को कैसे हैंग करना चाहते हैं दीवार पे, ये सारी चीजें मेजर करने के लिए, देखने के लिए उन्हें स्पिरिट लेवल की जरूरत थी, जो कि मिस्टर गूगल के पास थी। और जिम को अंकल पॉजर ने ये लाने के लिए कहा। मारिया जो है, मारिया को उसने कहा कि तुम कहीं मत जाओ, तुम यहाँ पर मेरे साथ रहो, ताकि तुम जब मैं चढ़ूं, ठीक है, सीढ़ी पर, चाहे मैं चेयर पे चढ़ूं, तो तुम यहाँ पर देख सको, मेरे को पकड़ सको, जो चेयर है उसे पकड़ के रखना। एंड जब जो गर्ल्स हैं, बाकी जो गर्ल्स हैं, जो नेल्स लेके, जिनको लेंस लाने के लिए कहा गया था, कील लाने के लिए कहा गया था, वो जब वापस आएंगे तब हम उनको वापस भेजना पड़ेगा मुझे पिक्चर कॉर्ड लाने के लिए, ठीक है। एंड टॉम को यहाँ से फिर से उन्होंने क्या कहा कि तुम मुझे पिक्चर पकड़ाओ, पहले जो फ्रेम वाला पिक्चर है वो मुझे पकड़ाओ। फिर उन्होंने क्या किया कि पिक्चर लिफ्ट किया, पिक्चर उठाया और गिरा दिया, ठीक है। वो फ्रेम से बाहर आ गया पिक्चर, ठीक है, गिर जाने के बाद वो फ्रेम से बाहर आ गया। ग्लास को उन्होंने सेव करने के लिए कोशिश की, लेकिन उन्होंने हाथ काट लिया खुद का, ठीक है। अब ही स्प्रेंग अराउंड द रूम, मतलब वो रूम के अराउंड खोजने लगे, ठीक है, हैंकी खोजने लगे, ताकि वो अपने जो हाथ कट गया है उसके ऊपर रख सके। और उसके बाद जब उन्होंने उनके पॉकेट में क्योंकि रखा हुआ था, ठीक है, उनको कोट ने पॉकेट के कोट में हैंकी रखा हुआ था, तो कोट उन्होंने निकाल दिया था। एंड ही डिड नॉट नो, मतलब उन्हें याद नहीं कि उन्होंने कोट उतार के रखा तो रखा कहाँ। अब वो जो हाउस है, ऑल द हाउस हैड टू लीव ऑफ लुकिंग फॉर हिज टूल्स एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर द कोट। मतलब जिनको जो भी काम दिया गया था करने के लिए, यहाँ पर ऊपर टॉम को, विल को
जॉ को मारिया को जो भी जिम को जो मारिया को जो भी काम दिया गया था वो सब छोड़ के सब कोई उनका हैंकी खोजने लगे, कोट खोजने लगे, ठीक है। while he danced around and hinder him, ठीक है, हिंडर देम, हिंडर मतलब उनको बार बार टोक रहा है, जब भी वो खोज रहे हैं कुछ भी वो बस चारों तरफ घूम रहे हैं और सबको टोक रहे हैं कि तुम खोजे क्यों नहीं, अभी तक मिला क्यों नहीं, क्या कर रहे हो, इस तरह का उनका बिहेवियर है। यस, so here we have to start. Anyone else who would like to read? And one more thing, आप लोग यहाँ पर रीड जब करते हो तो ध्यान में रखना कि what kind of story taking place here, ठीक है। यहाँ पर स्टोरी किस टाइप की है ये भी ध्यान रखना है। Yes, four student, anyone interested in reading this from here? Yes, if you are not going to speak again, I will always have to have the option to allow tell you to speak again. यहाँ पर मेरे को नाम लेना अच्छा नहीं लगता है बार बार किसी पर्टिकुलर पर्सन का, आप खुद से अपना तरफ से बोल दीजिए if you are interested in reading. Okay, yes, Mukul, can you start reading from here? Mukul, roll number 52. Again, I'm telling you, if you are not going to respond, I have to remove you from the class. Mukul, are you able to hear my voice? So just disrupt the class, okay, if you are not going to maintain the flow, ठीक है, it is going to disrupt the class. Okay. Yes. Google, can you unmute yourself? Okay. So fine. If you don't want to read, just don't read. Let me just explain it to you and you just listen as if you are just sitting here. प्रवचन में बैठे हो उसी तरह बस आप सुनते रहो। तो यहाँ पर आपका यहाँ तक स्टोरी में क्या हुआ कि यहाँ पर अंकल रॉजर जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि whenever he takes the task, मतलब उनको जब भी कोई काम मिलता है या जब भी वो कोई काम खुद से ले लेते हैं करने के लिए तो पूरे घर में कमोशन हो जाता है। क्यों कमोशन हो जाता है? क्योंकि वो आंट पॉजर को बोल तो देते हैं कि हम कर लेंगे, तुम टेंशन मत लो, लेकिन जितने भी बच्चे होते हैं घर में सभी को वो कुछ ना कुछ काम पकड़ा देते हैं। अब उन्होंने पेंट जैसे ही जो पेंटिंग है या फिर जो पिक्चर है उसे दीवार पे लगाने के लिए उठाया तो उन्होंने पेंटिंग गिरा दी। पेंटिंग गिराते वक्त जब वो गिर रहा था उन्होंने जो ग्लास है, जो कांच है फ्रेम का, उसे बचाने की कोशिश की लेकिन उनका हाथ कट गया। अब नाउ सब कोई जिनको जो भी काम दिया गया था अंकल रॉजर की तरफ से वो सारा काम छोड़ के वो लोग हैंकी खोजने लगे अंकल रॉजर का, ताकि वो अपना जो घाव है जहाँ पर कट गया है वहां पर हैंकी लगा के उसे रोक सके या उसका टेम्पररी कुछ इलाज कर सके। Doesn't anyone in the whole house know where my coat is? I never came across such a set in all my life. Upon my word, I didn't. 6 of you, and you can't find a coat that I put down for 5 minutes ago. Well, all of the यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर अंकल पॉजर जो है वो सब बच्चे जो हैं सब खोज रहे हैं उनका कोट, लेकिन वो यहाँ पर बस घूम घूम के सबको डांटे जा रहे हैं कि तुम लोग एक कोट नहीं ढूंढ पा रहे हो, 5 मिनट पहले मैंने उतार के रखा था, फिर भी कैसे बच्चे हो कि तुम लोग ढूंढ नहीं पा रहे हो। then he get then he'd get up and find that 1 minute, let me admit the student who is coming. Yes. Then he'd get up and find that he had been sitting on it and would call out, "Oh, we can give it up. I found it myself. I might just as well ask the cat to find anything as expect you people to find it." He would be sitting, ठीक है, जैसे ही वो उठेंगे वहां पर देखा होगा कि वो कोर्ट पे ही बैठे हुए थे, and he would call out to everyone, वो बुलाते हैं सबको,
कि मैंने खुद ही ढूंढ लिया, तुम लोग से तो कोई काम ही नहीं होता, इससे अच्छा तो मैं किसी कैट को बोल देता काम करने के लिए. And when half an hour had been spent in tying up his finger, and now new glass had been got, and the tools and the ladder and the chair and the candle had been bought, he would have another go, and the whole family, including the girls and the charwoman, standing around in a semicircle ready to help. The two people would have to hold the chair, and the third would help him up on it and hold him there, and a fourth would hand him a nail, and the fifth would pass him up the hammer, and he would take hold of the nail and drop it. That means यहाँ पर जब उन्हें कोट मिल गया, तब आधे घंटे तक उन्होंने अपने हाथ को पूरा बांधा अच्छे से हैंकी से, ठीक है. उसके बाद एक नया ग्लास फ्रेम लाया गया जिसमें वो स्ट्रक्चर को रखा गया. सारे जो टूल्स हैं जो उनको हेल्प करने के लिए चाहिए वो सारे टूल्स लेके आए गए. चेयर लेके आया गया, सीढ़ी लेके आया गया, लेडर जो है सीढ़ी लेके आया गया. फिर पूरी फैमिली जो है इंक्लूडिंग द गर्ल्स, यानी कि जो लड़कियां हैं और जो चार वुमेन है, चार वुमेन मतलब वो जो हाउस मेड्स होती हैं जो घर का काम करने के लिए, उन्हें चार वुमेन कहा जाता है. वो सभी कोई सेमी सर्कल में, यानी कि दीवार के इस तरफ सब सेमी सर्कल में खड़े रहेंगे, रेडी रहेंगे उनकी हेल्प करने के लिए. दो लोग जो हैं वो चेयर पकड़ेंगे, ठीक है, जिससे अंकल पॉजर खड़े होंगे. तीसरा उन्हें हेल्प करेगा चेयर पे खड़े होने का. चौथा जो है वो उन्हें नेल्स देगा, नेल देगा, नेल मतलब कील देगा. और पांचवा जो है वो उन्हें हैमर देगा. और उसके बाद भी जब सब कुछ उनको मिल गया, उसके बाद भी जब वो लगाने जाते हैं दीवार पे, तब नेल जो है, कील जो है वो नीचे गिर जाती है. देयर ही वुड से इन एन इंजर्ड टोन, हाउ द नेल्स गॉन. मतलब जैसे ही नीचे गिरता है तो वो अचानक से एकदम इंजर्ड टोन में, इंजर्ड टोन का मतलब क्या कि एकदम दुखी आवाज में बोलते हैं कि कहाँ चला गया नील, नेल्स जो है वो कहाँ चले गए. And we would all have to go down on our knees and grovel for it while we went stand while he would stand on the chair and grunt and want to know if he was to be kept there all the evening. मतलब जैसे ही उन्होंने जो कील है वो नीचे गिरा दी, तो यहाँ पर कील जब नीचे गिरी तब वो एकदम इंजर्ड मतलब दुखी आवाज में एकदम बोलते हैं अब नील जो नेल है वो कहाँ चला गया. नेल कहाँ चला गया, तो वहां पर जितने बच्चे हैं वो सब ग्राउंड लेवल पे जाकर, यानी कि घुटनों के बल बैठ के सारा सब कोई पूरा आपस में कील ढूंढने लगा, क्योंकि एक छोटी सी कील है वो कहीं भी गिर सकती है. सब कोई अपना घुटनों के बल जाके ढूंढने लगा, और वो बस वहां चेयर पे खड़े होके अंकल पॉजर चिल्लाते रहते हैं कि क्या मुझे शाम तक यहाँ पर खड़ा रखोगे तुम लोग, एक कील नहीं ढूंढी जा रही है तुमसे. The nail would be found at last, and by the time he would have lost the hammer. और जब तक कील सबने मिलकर खोजा तब तक उनकी हैमर जो है यानी कि हथौड़ा जो है वो गुम हो गया. Where's the hammer? What did I do with the hammer? Great heavens, 7 of you gapping around there and you don't know what I did with the hammer. मतलब वो जो यहाँ पर सब कोई खड़ा है, ठीक है, 6 बच्चे जो हैं प्लस जो एक मेड है उनके पास, वो सभी कोई खड़ी है और वो सभी कोई खड़ा है उनके पास, और वो बस इतना चिल्ला रहे हैं कि अब नेल मिल गया तो उनके पास हैमर नहीं है, कहाँ चला गया हैमर, मैंने कहाँ रखा. यहाँ पर तुम लोग सब कोई 7 लोग यहाँ पे खड़े हो, फिर भी किसी ने मुझे हैमर रखते हुए देखा नहीं. He would find 1 minute. Okay, where were we? Yes, we were here. We would find the hammer for him, and then he would have lost sight of the mark and he had made on the wall where the nail was to go in, and each of us has to get up on the chair beside him, and we would each discover it in the different place, and he would call us all fools one after another and tell us to get down, and he would take the rule and remeasure and find he wanted half 31 and 38 inches from the corner, and would try to do it in his head and go mad. That means जब उनके पास हैमर चला गया, नेल चला गया, उसके बाद जब दीवार पे उन्होंने मार्क किया था जहां पर उन्हें पेंटिंग टांगनी थी, कील लगाना था, वहां पर वो मार्क जो है वो भूल गए कि कहाँ मार्क किया था, वो उन्हें मिला ही नहीं.
और एक एक करके वो सभी जितने भी पर्सन थे वहां पर, जितने भी 6 बच्चे थे और एक मेड जो थी, सबको वहां पर चेयर पे खड़ा करा के उन्होंने पूछा कि कहाँ पर है, और हर कोई वहां पर अलग अलग जगह बता रहा था। तो वो सबको बारी बारी सबको सिर्फ बेवकूफ बोलते बोलते सबको उतारने लगे। और फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा से मेजर किया उनको पिक्चर को, हाफ मतलब एक बार जब मेजर किया तो 31 आ रहा है, दूसरी बार दूसरे कॉर्नर से मेजर किया तो 38 आ रहा है। अब वो कॉर्नर, दोनों कॉर्नर पकड़ के जब मेजर कर रहे हैं तो वो उनको मेजरिंग नहीं मिल रहा है कि कितना होना चाहिए, और वो अपने दिमाग में कैलकुलेशन करते करते पागल हो जाते हैं। नेक्स्ट थिंग, this is going a little slow here, and we would all try to do it in our heads and all arrive at different results and sneer at one another. And in the general law, the original number would be forgotten, and Uncle Podger, okay, that is good to inform. ठीक है, अगर आपका नेटवर्क कनेक्शन की वजह से आप डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं, just let me know in the chat box. ठीक है, so where were we? Yes, we all try to do in our head and arrive at different results and sneer at one another. And in general law, the original number would be forgotten, and Uncle Poacher would have to measure it again. मतलब वो खुद तो अपने ही माइंड में कर ही रहे थे कैलकुलेशन की 31 होना चाहिए, 38 होना चाहिए। अब वो जितने वहां पर बच्चे हैं वो सब अपने दिमाग में करने लगे कैलकुलेशन, और सबका रिजल्ट जो है वो डिफरेंट आया, और एक दूसरे से वो लोग लड़ने लगे कि नहीं तुम्हारा रिजल्ट गलत है, मेरा रिजल्ट सही है। ऐसा करके सब कोई लड़ने लगे, और जो ओरिजिनल नंबर था वो सब कोई भूल गया कि मेजरिंग नंबर क्या था, और उसके बाद फिर से अंकल पॉजर को वहां पर मेजर करना पड़ता है। He would use a bit of string this time, and at the critical moment when the old fool was leaning over the chair at an angle of 45 and trying to reach a point 3 inches beyond what was possible for him to reach, the string would slip down and he would slide on the piano, on really fine musical effects being produced by the suddenness with which his head had been struck all the notes at the same time. मतलब जब उनको वहां पर दोबारा मेजर करना पड़ता है तो इस बार उन्होंने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? कि हम एक धागा बांध देते हैं, उससे हमें परेशानी नहीं होगी मेजर करने में। तो जब वो धागा बांध रहे थे तो धागा इस जगह बांध रहे थे कि चेयर जो है वो थोड़ा सा टिल्ट हो रहा था, ठीक है, जितना वो पहुंच सकते थे उससे 3 इंच ऊपर उन्होंने कोशिश की बांधने की। अब जैसे ही वो बांधने लगे तो वो स्लिप हो गए, और बगल में जो पियानो रखा था उसके ऊपर उनका सर टकरा गया, और अचानक से सर टकराने से अजीब सा एक साउंड निकला पियानो की वजह से। ओके, and Aunt Maria would say he would not allow the children to stand around and hear some language. मतलब ऑब्वियसली जब इंसान गिरता है तो उनके मुंह से कुछ निकल जाता है। तो आंट मारिया जब वो बोलने लगते थे, जो अंकल पॉजर हैं हमारे, वो जब गिर जाते थे तो वो कुछ कुछ बोलने लगते थे जो कि ऑब्वियसली चिल्ड्रन के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। तो आंट मारिया वहां पर फिर आती थी और कहती थी कि वो यहाँ पर बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि बच्चों के सामने इस तरह की लैंग्वेज आप बोले। At last, Uncle Podger would get the spot fixed again and put the point at the nail on it, and with his left hand and take the hammer in his right hand. And with the first blow, he would smash his thumb and drop the hammer, and with a yell on somebody's toes. मतलब कि जैसे ही उनको एक जगह फिक्स कर दिया उन्होंने स्पॉट, उसके बाद वहां पर उस स्पॉट पे उन्होंने नेल रखा लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से हैमर मारने की कोशिश की। और जैसे ही पहला ब्लो उन्होंने मारा, यानी कि पहली बार जब हथौड़ा नीचे आया उनके कील के ऊपर, तो कील के ऊपर नहीं, उनके थंब यानी अंगूठे के ऊपर, लेफ्ट हैंड के अंगूठे के ऊपर चला गया, और उन्होंने जोर से चिल्ला के जो है हैमर को नीचे गिरा दिया और किसी और के पैर पे गिरा दिया। Aunt Maria would mildly observe that next time that Uncle Podger was going to hammer a nail into the wall, she hoped he'll let her know in time so that she would make arrangements to go and spend a week with her mother while it was being done. अब आंट मारिया जो है वो चुपचाप शांति में ये सारी चीजें देख रही हैं जो अंकल पॉजर कर रहे हैं, और
वो यही सोच रही हैं कि अगली बार जब उनको दीवार में कभी कील ठोकनी हो तो इसका अरेंजमेंट पहले ही 1 हफ्ते पहले बता दिया जाए उन्हें, ताकि वो 1 हफ्ते के लिए पूरा अपना जो 1 हफ्ता पूरा है वो अपने मम्मी के घर यानी मदर के घर जाकर स्पेंड करें। Oh, you women, you make such a fuss over everything. Uncle Porter would reply, picking himself up. Why I like doing a little job on of this sort. अंकल पॉर्चर क्या कहते हैं फिर कि तुम लोग ना छोटी छोटी बात को बात का पतंगर बना देते हो, मेरे को छोटे मोटे काम करने में अच्छा लगता है घर में। And then he would have another try, and at the second blow the nail would go clean through the plaster and half the hammer after it, and Uncle Porter would precipitate against the wall with the force nearly sufficient to flatten his nose. मतलब अगली बार यानी कि सेकेंड ब्लो जब उन्होंने मारा, सेकेंड बार जब उन्होंने नेल के ऊपर हैमर मारा तो इतनी जोर से मारा कि नेल जो है वो एकदम चिपक गया दीवार में, यानी कि पूरा अंदर चला गया और वो भी थोड़ा सा टिल्ट हो गया, यानी कि हैमर भी पूरा जो है उसके दीवार के अंदर थोड़ा सा चला गया। और अंकल पॉजर जो है वो इतने फोर्स से उनका बॉडी आगे बढ़ा, इतने फोर्स से उन्होंने मारा कि उनका ऑलमोस्ट जो नोज है वो दीवार पे पूरा फ्लैट हो जाता है, यानी कि पूरा टकरा जाता। Then we had to find the rule and the string again, and a new hole was made. And about midnight, the picture would be up, very crooked and insecure, the wall for yards round, looking as if it had been smoothed down with rags, and everybody dead beat and rest except Uncle Porter. मतलब वो लोग फिर से रूलर लेकर यानी कि मेजरिंग डिवाइस लेकर स्ट्रिंग लेकर नया एक छेद बनाने की कोशिश करते हैं वहां पर पिक्चर टांगने के लिए। और मिड नाइट यानी कि 12 एट द नाइट, ठीक है, 12 बजे के करीब रात में पिक्चर जो है वो टंग तो गई है लेकिन टेढ़ी मेढ़ी और बिल्कुल भी सिक्योर नहीं, यानी कि कभी भी गिर सकती है, इस टाइप का वहां पर हो गया है। और आसपास का जो एरिया है वॉल है वो इस तरह कर दिया गया है जैसे उसे मतलब जबरदस्ती उसे दबाया गया है, ठीक है। जैसे कभी कभार दीवार में छेद हो जाती है तो हम लोग सीधे हाथ से कुछ करने की कोशिश करते हैं ताकि वो थोड़ा सा सिक्योर हो जाए। और सब कोई इतना मतलब थक जाता था, डेड बीट मतलब बहुत ज्यादा थक जाना कि आप खड़े भी नहीं हो पा रहे, तो सब कोई जो था वो थक जाता था बहुत ज्यादा, लेकिन अंकल पॉजर जो है वो नहीं थकते थे। देयर यू आर, ही वुड से, stepping off the chair on the to the charwoman's corn and surveying the mess he has made with evident pride. Why some people would have had a man in to do a little thing like that. ये करने के बाद अंकल पॉर्चर जो है वो चेयर से नीचे उतरते हैं और जो मेड है, ठीक है, उसके पैर पे पैर रख देते हैं, ठीक है, उसको मतलब धकेलते हुए पीछे वो नीचे उतरते हैं और एकदम प्राउड से जो चीजें उन्होंने की हैं आसपास देखकर एकदम प्राउड से बोलते हैं कि अरे देखो कुछ लोग ये काम करने के लिए आदमी बुलाते हैं बाहर से, मैंने खुद ही कर दिया, ठीक है। तो दिस वाज योर स्टोरी। नाउ आई डोंट बिलीव कि आपको ये सारी चीजों की जरूरत है, बट इफ यू लाइक आई वुड सेंड दिस टू यू। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चंस भी गिवन है बहुत सारे, यू कैन गो थ्रू द चैप्टर। ये जो चैप्टर है ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, दिस इज बेसिकली अ कॉमिकल स्टोरी अबाउट अंकल पॉजर्स कैरेक्टर, ठीक है। इसके राइटर जो हैं, राइटर्स नेम इज जर्मी के जर्मी, ठीक है। तो इफ यू वांट टू नो अबाउट राइटर यू कैन बेसिकली फाइंड दैट आउट ऑन योर ओन, ठीक है। तो आई बिलीव आई हैव क्लियर्ड अप द स्टोरी। अगर किसी को डाउट है स्पेसिफिकली स्टोरी में तो दे कैन आस्क मी, अदरवाइज लेट्स एंड दिस क्लास हियर। यहाँ पर ये जो हुआ हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चंस जो हैं इसी के साथ हैं, यहीं पर नीचे गिवन है, तो लेट्स डिस्कस दिस फ्यू क्वेश्चंस दैट आर गिवन हियर। व्हाट हैपेंड एवरी टाइम ऑन द शॉप, ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ में आपको आंसर मिल जाएगा। व्हाट हैपेंड एवरी टाइम अंकल पॉजर अंडरटुक अ जॉब, मतलब जब भी कोई अंकल पॉजर जो है कोई भी काम लेते थे घर में करने के लिए तो क्या होता था। इसका वन लाइनर आंसर आप लिख सकते हैं और यू कैन एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग दैट इज रिटन इन द स्टोरी। लिस्ट द टूल्स एंड द थिंग्स अंकल पॉजर नीडेड टू हैंग द पिक्चर, मतलब पिक्चर लगाने के लिए अंकल पॉजर ने जो जो टूल्स मांगे थे उन सभी चीजों का नाम आपको लिखना है। व्हाट हैपेंड व्हेन अंकल पॉजर स्लिड ऑन द पियानो,
जब वो पियानो पे गिरे तो क्या हुआ ये आपको डिस्क्राइब करना है। What all went wrong when Uncle Roger tried to hang the picture? जब उन्होंने ट्राई किया पिक्चर हैंग करने का तब क्या हुआ, क्या क्या गलत हुआ, मतलब क्या क्या वहां पर प्रॉब्लम्स आई, ये सारी चीजें आपको डिस्कस करनी है। What was Aunt Maria's reaction at Uncle Roger's hanging the picture? आंट मारिया का क्या रिएक्शन था जब अंकल पॉजर जो है वो पिक्चर हैंग कर रहे थे। बहुत आसान से क्वेश्चन है, आसान सा चैप्टर है, बहुत ज्यादा तो इसमें आपको समरी लिखने के लिए आ जाएगा, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा, जो चीज यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन किया गया है, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज्यादा नहीं। इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू डोंट अंडरस्टैंड यू कैन जस्ट आस्क मी। और जो बच्चे बीच में क्लास में ज्वाइन किए हैं, ठीक है, उनको भी मैं समझा देती हूँ कि यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, सिंपल सा एक चैप्टर है। ये पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप पढ़ लेना, उसके बाद भी नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्लास फिर से पूछ लेना, ठीक है। इज देयर स्पेसिफिक डाउट फ्रॉम एनी स्टूडेंट? कोई भी स्टूडेंट से कोई स्पेसिफिक नो डाउट मैम। है? एनीवन एल्स? चलिए नहीं डाउट है तो लेट्स एंड दिस हियर एंड आई विल सेंड दिस पीडीएफ टू यू। 66 is disconnected. Okay, if they joined again, if 66 does not join again, let me know. Okay, yes. So let me just take the attendance and then we can rest the case here. और again मैं remind करा रही हूँ दोनों ही बैचेस में 444 445 मंडे को आपको यहाँ पर मंडे को आपका MRQ है, ठीक है। The only thing that you have to keep in mind is कौन से चैप्टर्स आपके आएंगे जिससे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, वो आपका है गिफ्ट ऑफ मैजाय, द पैरट इन द केज, द वर्क ऑफ आर्ट, sorry, a work of art, and one more was, what was it? Parrot in the cage, yes, doll's house, the doll's house. ये 4 चैप्टर्स हैं आपके। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन सो दैट इवन आई डोंट फॉरगेट इट अगेन, ठीक है। MRQ है आपका मंडे को आई बिलीव 7th है, राइट? 7th फेब को आपका MRQ है, ठीक है। क्या क्या चैप्टर्स आएंगे वो भी लिख देती हूँ। चैप्टर्स होगा द डॉल्स हाउस, पैरट इन द केज, और क्या था? पैरट इन द केज, द डॉल्स हाउस, अ वर्क ऑफ आर्ट एंड द गिफ्ट ऑफ मैजाय। ये आपके 4 चैप्टर्स हैं जिसमें से आपका MRQ क्वेश्चंस आएंगे। मंडे को है, ये मैसेज मैं आपके ग्रुप में भी डाल दूंगी, लेकिन फिर भी आप लोग सबको बता दे रही हूँ कि व्हाट ऑल चैप्टर्स और व्हाट ऑल व्हेन इज योर MRQ। ट्राई नॉट टू मिस दिस MRQ, ठीक है। आप लोग ने पिछली बार भी एक बार MRQ लिया था 444 में, स्टूडेंट सबको ही एब्सेंट हो गए, तो ये वैसा मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये लिटरेचर का है MRQ, एड ऑन सब्जेक्ट नहीं है, लिटरेचर है, तो MRQ के लिए एब्सेंट आप लोग नहीं करेंगे। एंड अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, जितने भी स्टूडेंट है, अगर किसी का भी यहाँ पर मुझे यहाँ पर ऑडियो डिस्कनेक्टेड दिखा तो मैं उसका अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी। ओके, so that is all finished, and if you have no more particular doubt, MRC में कोई डाउट नहीं है, चैप्टर में कोई डाउट नहीं है, तो we are going to end the session here. Is there any particular doubt regarding anything? No doubt? Okay, if there is no doubt, then let's end this class here. And again, I am reminding, question आपके 5 क्वेश्चन पर स्टूडेंट मैं पूछूंगी,
जो भी चैप्टर्स बताएं उनमें से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एमसीक्यू हो सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप हो सकता है, लॉन्ग आंसर टाइप हो सकता है। तो सारे आंसर्स आप जो भी आप तैयार कर सकते हैं खुद से तैयार करेंगे। ऑल राइट, ओके, लेट्स Yeah, एंड दिस ma'am. सेशन।